أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So فائنلی ہم اپنی اگلی کلاس کے لیے آج موجود ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو محرم ہالیڈیز کی وجہ سے کلاس لینا جو ہے وہ کنوینئنٹ نہیں رہا، سو ہم نے کلاس کنڈکٹ نہیں کی، لیکن آج ہم لیسن 9 کا آخری اشارہ پڑھیں گے۔ سو خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا لیسن 9 صفحہ نمبر 9 حافظی مدنی نصف قرآن سے مکمل ہو جائے گا۔ یہ بڑی کامیابی کی بات ہے، اور پھر اس کورس میں صرف آخری صفحہ رہ جائے گا، صفحہ نمبر 10، جو اگلے 4 ہفتوں میں ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے الفلاح منزل E11 4 اسلام آباد سے موجود ہوں، اور ہم نے اب تک آپ کے کالج IMCG F72 میں گزشتہ 15 سیشنز QC3 کے مکمل کیے ہیں، اور قرآن مجید کے صفحہ نمبر 6 7 اور 8 کو مکمل کرتے ہوئے صفحہ نمبر 9 جاری ہے، جو آج مکمل ہوگا۔ اس دوران ہم نے سورۃ البقرہ کو آیت نمبر 38 سے 66 تک مکمل کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی 38 سے پہلے جو آیات ہیں وہ QC2 میں پڑھی ہیں، اور QC2 سے پہلے QC1 میں اپنی بیسکس جو ہیں گرامر کی وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہیں، قرآن کے الفاظ سے ہم کنیکٹ کیے ہیں، اور ہم نے 50% سے زیادہ ورڈز قرآن کے اوور آل QC1 میں سیکھے تھے۔ تو یہ ہماری جرنی تھی جو بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ اور گرامر میں اگر ہم گرامر میں دیکھیں تو جی، تو ہم نے QC3 میں ایسے افعال پڑھے جن کو مزید فی فعل کہتے ہیں، اور 8 پیٹرنز ہیں، ان کے 8 ٹائپس ہیں۔ جیسے QC1 میں ہم نے 4 ٹائپس پڑھی تھی ایسے افعال کی جو 3 روٹ لیٹر سے بنتے ہیں، اور پھر QC2 میں بھی وہی سلسلہ کنٹینیو ہوا تھا کمزور اور اس طرح کے افعال میں۔ جب ہم نے کورس 3 شروع کیا تو اس میں خاص بات ہی یہ تھی کہ ہم ایسے فعل انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جو کہ 3 روٹ لیٹر سے بنتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ کچھ مزید بھی آ جاتا ہے، کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اضافے والے جو ہوتے ہیں جن میں مزید 3 روٹ لیٹرز کے ساتھ کچھ مزید آ رہا ہے، ان کو مزید فی فعل کہتے ہیں۔ تو ان کے 8 پیٹرنز ہیں، QC1 والے 4 پیٹرن تھے، ٹھیک ہے۔ اور کمزور انہی 8 پیٹرنز کے انڈر جو کمزور آنے والے افعال ہیں، آج کل ہم ان کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ولّا، نادا، اقامہ، القا، آمنا، اذلہ اسٹڈی کیا۔ آج ایک نیا ٹیبل ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سو رائٹ ہینڈ کے 5 انگلیوں پر ہم نے QC2 کے اشارات پریکٹس کیے تھے، اور اب ہم لیفٹ ہینڈ کی جو ہے وہ 5 انگلیوں پر صفحہ نمبر 6 7 8 9 اور 10 کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ اور صفحہ 9 کا جو پہلا اشارہ تھا وہ تھا عام قاعدہ، دوسرا ہے طور کا وعدہ، تیسرا ہے ہفتے کے مجرم، اور پھر ہے بقرہ کا قصہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ انڈیکس فنگر پر آ رہا ہے شہادت کی انگلی پر، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ، ریوائز کر لیں آپ بھی۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور شارٹ ورڈز میں اگر ہمیں یاد کرنا آسان لگتا ہے تو ہم یہ بھی پھر کہہ سکتے ہیں قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ، رائٹ۔ اس طرح سے مضامین کے ساتھ ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور ڈسپلن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے بعد یہ بات ہوئی تھی۔ یہ اشارے بہت ہیلپ کرتے ہیں چیزوں کو یاد رکھنے میں۔ تو آج ہم چوتھا اشارہ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو کہ ہے بقرہ کا قصہ، اور اس میں ہم 3 آیات کو اسٹڈی کریں گے۔ سسٹر سمیرا، مجھے ایک بات بتا دیجیے، آڈیو ویڈیو بالکل کلیئر ہے، اور اسکرین پہ آپ کو کوئی ایڈیشنل بلیک باکسز یا کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی، ویڈیو کلیئر ہے، لیکن اسکرین پہ آ رہے ہیں 2 باکسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ایک اسکوائر ایک ہاں ریکٹینگولر۔ تو تھینکس گاڈ میں نے پوچھ لیا، کیونکہ یہ پرابلم کبھی کبھی آ رہا ہے نا۔ اب میں جی، چلیں اس چیز کا خیال رکھتی ہوں تاکہ پرابلم نہ آئے۔ اچھا کیا کہ میں نے ڈسکس کر لیا، اب بہتر ہو گیا ہے؟ اب زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا ہے؟ کیا زیادہ ہو گیا ہے؟ ہے، باکسز اب کم ہو گئے ہیں باکسز۔ اب کون سا باکس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب ٹاپ پہ ایک آ رہا ہے، ایک رائٹ سائڈ پہ ٹاپ آپ کو اینڈ میری پہ، آپ اور کو ایک میری ویڈیو نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی ویڈیو آ رہی ہے۔
लेकिन बॉक्स अलग है। अच्छा, एक मिनट। बॉक्स एक जो है ना मिनट, वो आपकी पीपीटी पे है जी। अब बताइए, अब क्या कंडीशन है? जी वैसे ही है। बॉक्सेस एक टॉप पे आप आ रहा है, जो अब ये जरा रिड्यूस हुआ है थोड़ा सा, लेकिन रिड्यूस हो विजिबल गया? है, मतलब साइड पे है ना, मतलब राइट साइड पे और टॉप पे और कॉर्नर पे है, लेकिन मुझे आपका टेक्स्ट नजर आ रहा है। वो कोई मसला नहीं है बीच में। ठीक है, और एक बॉटम पे थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, ज्यादा नहीं? जी एक बॉटम राइट पे एक लेफ्ट पे, जहाँ बकरा का किस्सा है वहां पे आ रहा है। तो अब मेरा ख्याल है अब काफी बेहतर हो गई है स्क्रीन। जी वो विजिबल तो है, ठीक है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी इसका भेज ठीक है, देती अब हूँ। बीच में अगर कोई ऐसी चीज आती है जिसमें आपको टेक्स्ट नजर ना आए या प्रॉब्लम आए तो आपने मुझे बताना है। ठीक है? ठीक, ठीक है। थैंक यू सिस्टर। तो बकरा का किस्सा यानी सफ़ा मुबारक का की जो आखिरी 3 आयत हैं वो हम समझने जा रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि पिछली आयत से इनका ताल्लुक मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहा है, और नेमतों के ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्द अमल को भी बयान फरमा रहा है। ठीक है? तो हम इसमें देखते हैं कि ये 3 आयत हैं, आयत नंबर 67, 68 और 69, जिसमें कुछ नए अल्फाज भी हम देखेंगे, लेकिन मेजोरिटी अल्फाज वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बड़ी खुशी होती है ये जानकर। आज हम सब समझेंगे कि बनी इसराइल ने न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बल्कि अल्लाह के अहकाम के साथ भी तौहीन का मामला किया। बनी इसराइल के दिलों में खुद उन्हें निजात दिलाने वाले की भी कोई इज्जत और अजमत न थी। बनी इसराइल की नाफरमानी और हद से गुजरने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सब्र से मुजाहरा किया। बनी इसराइल के सवालात ला इल्मी या जहालत की वजह से नहीं, बल्कि सरकशी और बगावत की वजह से थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनके तमाम सवालात के जवाब दिए। यकीनन अल्लाह ताला बहुत ही बुर्दबार, बेहद मुआफ करने वाला और रहीम है। ठीक है? सो आगे चलते हैं और इन सब पॉइंट्स को हम समझने की, देखने की कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट लाइंस में चंद चंद अल्फाज हैं जो यहाँ नंबर्स ने दिए हुए हैं, 411, 413, यानी वेरी फ्यू जो हमने नए सीखने हैं। बाकी हमें पहले से आते हैं। आइए हम इसका आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق अल्लाहुल अज़ीम। सो आइए तराजिम को देखते हैं। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि तुम जिबा करो एक गाय। उन्होंने कहा, क्या तू बनाता है हमें हंसी मजाक? उसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इससे कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। आइए हम इन अल्फाज को पहले समझते हैं, फिर मैसेज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? वइज, और जब, कौला, कहा, QC2 में, कौला, यकूलू हम पढ़ चुके हैं नासरा के पैटर्न से कि ये कमजोर टेबल है। ठीक है? और जब उसने कहा, किसने कहा? मूसा। तो जब मूसा आ गया तो मानी हो जाएगा, और जब मूसा ने कहा। ठीक है? ली कौम ही, अपनी कौम से। ली कौम ही 3 हिस्सों में समझ सकते हैं, अपनी कौम के लिए या अपनी कौम से। इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, यअमुरुकुम 2 हिस्सों में समझेंगे। एक मुदारे है, यअमुरु, हमने QC2 में पढ़ा था। अमरा, उसने हुक्म दिया। यअमुरु, वो हुक्म देता है। कुम, तुम्हें, ये अटैच्ड प्रोनाउन है, हमने QC1 में पढ़ा था। यअमुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। ठीक है? अन, के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ा था, अन का मतलब के होता है। तज़बहू, तुम जिबाह करो। ठीक है? सो बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है? ये है तज़बहूना, एक फेल है। फतह यफ्तहू से, ज़बह तबाह। यज़बह। जी। ठीक है? ज़बह यानी उसने जिबा किया, यज़बहू वो जिबा करता है या करेगा। तो जब यज़बहू, यज़बहूना, तज़बहू, अज़बहू, तज़बहूना, तुम सब जिबा करते हो या करोगे। ये असल में, ये जो आपको तज़बहू नजर आ रहा है, असल में ये तज़बहूना है।
لیکن آپ کو بارہا بتایا جا رہا ہے کہ مضارع کچھ اس طرح سے آتے ہیں قرآن میں، مختلف تبدیلیوں کے ساتھ، مختلف ان کی حالتیں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہم QC 4 میں ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں۔ اور نیکسٹ کورس بہت ہی دلچسپ ہے، اس کا ہر لیسن الگ چیز بتاتا ہے۔ QC 2 اور 3 کی طرح اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر لیسن میں ٹیبل ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، اس میں بہت مزہ آئے گا، نئے نئے کانسیپٹس اور نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوں گی۔ ایک لیسن میں مونس کی بات ہو رہی ہے، ایک میں مضارع میں تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں وہ بات ہو رہی ہے، تو بہت مزے کا ہے QC 4۔ تو یہ اصل میں تسبحونہ ہے، ایک مضارع کی تبدیلی آئی جس کی وجہ سے نون چلا گیا، اس کی ڈیٹیل ہم QC 4 میں دیکھیں گے۔ بقرتن، گائے، ایک گائے کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی گائے کی، مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ کسی اسم کے آخر میں اگر تنوین ہو، دو زبر دو زیر دو پیش، تو وہ ایک عام اسم ہوتا ہے، اور اگر اس کے آخر میں، اس کے شروع میں الف لام ہو تو وہ خاص ہوتا ہے۔ تو یہاں بقرتن کہا جا رہا ہے، یعنی کوئی بھی گائے، کوئی بھی گائے، اینی اینی ون، کوئی بھی ایک اینیمل جو تم نے ذبح کرنا ہے، کسی خاص چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اس میں یہ امر میں نہیں آئے گا تسبہو کا؟ نہیں سسٹر، یہ ایور نہیں ہے، میں یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو، وہ ہوں ہوتا ہے اذبح اذبح لا تذبح لا تذبح، وہ لا تذبح یہاں پہ لا بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہوں سب یہ آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ مضارع ہے، مضارع کی بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں، کبھی اس کی آخری حرکت کو سکون دے دیا جاتا ہے کسی جملے کی مناسبت سے، کبھی نون کو غائب کر دیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ QC 4 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح۔ مضارع کی تبدیلی ہے، فی الحال آپ اس ورڈ کو ہائی لائٹ کر سکتی ہیں یا اسٹار بنا دیں، ایسے جی جی کانسیپٹس سر، کے اوپر آگے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اوکے۔ قالو، انہوں نے کہا، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، ٹھیک ہے؟ اتتخذنا، اچھا ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، جو آپ امر میں کنفیوز ہو رہی ہوں گی شاید کیونکہ ترجمے میں لکھا ہے تم ذبح کرو، جی بالکل۔ ہاں تو آپ کو لگا کہ یہ امر ہے، اصل میں وہی بات ہے کہ جب ہم اردو میں تبدیلی کرتے ہیں نا، کسی بھی زبان کو ہوں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو اس کی سینس بدلنی پڑتی ہے اپنی زبان کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اصل میں ٹرانسلیشن ہمارے حساب سے یہ بن رہی ہے کہ تم ذبح کرتے ہو یا کرو گے وہ گائے، یعنی بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم وہ گائے ذبح کرو گے، یہ اس سینس میں صحیح آ رہا ہے، صحیح ٹھیک ہے؟ صحیح۔ ہاں کیونکہ اگر یہ امر بھی ہوتا نا، تم ذبح کرو، تو بھی تا نہ آتا، تا تو نہیں کے لیے آتا ہے کہ تم ذبح نہ کرو، تو اس ہوں لیے یہ ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ قالو، ان سب نے کہا، اتتخذنا، اس کو دو حصوں میں سمجھتے ہیں، حمزہ زبر کیا ہوتا ہے، کیا سوالیہ ورڈ ہے، تتخذنا، تو یہ جو ہے تتخذو اور نہ، بلکہ تین ورڈز ہیں، تتخذو، یتخذو، یتخذونا، تتخذو، اتخذو، ہم نے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو بناتا ہے، تو لیتا ہے، اس طرح کے ورڈز آتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ مطلب مضارع ہے، سامنے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ جو ہے اس کا مطلب ہے ہمیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے حضو ون، یہ ہنسی مذاق کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حضو ون، ہنسی مذاق۔ قالا، اس نے کہا، قالا کا ورڈ بہت دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے، اسی آیت میں ہی تیسری بار ہم پڑھ رہے ہیں، قالا قالو، پھر قالا۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پہلا لفظ جو QC 1 میں ہم نے پڑھا تھا، باللہ، اللہ کی، ان کے، دیکھیں ان اوپر بھی آ رہا ہے، ان تذبحو، اور ان یہاں بھی آ رہا ہے، ان اکونو، ان کے، اکونو میں ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا QC 2 میں، کانا یکونو والا ٹیبل، یکونو یکونو نہ تکونو اکونو، میں ہو جاؤں، مطلب میں ہو جاتا ہوں، ہو جاؤں گا، جملے میں ہو جاؤں لکھا جا رہا ہے، تو یہ مضارع ہے۔ من سے، الجاہلین، جاہل، جاہل کی جمع ہے جاہلین، رائٹ؟ تو آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، یعنی کانورسیشن کیا ہو رہی ہے، اصل میں ہوا یہ واقعہ تھا جس کی ہم ڈیٹیلز روایات میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا قتل ہو گیا اور اس کا معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قتل کیا کس نے ہے، تو کیونکہ آج کے زمانے میں بھی کتنے حادثے ہوتے ہیں، پچھلے 2 3 ہفتوں میں اتنے حادثے پاکستان میں سنے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور عافیت حفاظت میں رکھے سب کو۔ تو اس زمانے میں بھی ایک شخص کا قتل ہوا، اور وہ ایسے ہوا کہ لوگوں کو معلوم ہو ہی نہیں رہا تھا کہ کس نے کیا ہے، تو کیونکہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، نبیوں کے زمانے میں ڈائریکٹ معجزے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ معجزے کافی سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، تو ایک یہ خاص بات بھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارا رب دیکھو تمہیں کیسی کیسی چیزیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ مطلب ان لوگوں نے ڈسکس کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں کیسے پتا چلے، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ہمیں پتا چل جائے قاتل کون ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اس طرح سے کوئی بھی گائے جو ہے اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرو گے تو اس کا جو گوشت ہے وہ تم اس
मकतूल को, जिसको कत्ल किया गया है, उसके जिस्म के साथ लगाओ, वो कुछ देर के लिए जिंदा हो जाएगा और तुम्हें कातिल का नाम बता देगा। अल्लाह अकबर। और ये सब कौन कर सकता है? रब ही कर सकता है। ठीक है। तो ये हुआ। तो अब वो उसी बात के बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही है जो यहाँ से बताई जा रही है। हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखना है, राइट। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि तुम गाय ज़िबह करोगे, यानी अब जो तुम करने जा रहे हो या तुम गाय ज़िबह करो। उन्होंने कहा क्या तू बनाता है हमें हंसी मजाक? क्या मूसा अलैहिस्सलाम ये क्या बात हुई, हम कातिल का पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं गाय ज़िबह करो? क्या ये कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर? वो मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसे बात कर रहे हैं, जबकि उनको पता है वो पैगंबर हैं, नबी हैं, इतने मोजे दिखा चुके हैं, फिर भी वो इस तरह डिसरिस्पेक्ट करते थे। ठीक है। उन बद अखलाकी से पेश आते थे। और बेशक ये हुक्म बिल्कुल वाजे था, एक सिंपल सी बात थी जो कही गई, उनको अमल कर देना चाहिए था। और क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था। और मूसा अलैहिस्सलाम यही कह रहे थे कि अल्लाह हुक्म दे रहा है, मैं नहीं दे रहा। तो एक इंसान को, एक बंदे को चाहिए कि वो बात माने, बजाय इसके कि वो एतराजात करे। तो बनी इसराइल का रवैया क्योंकि हमेशा गैर अखलाकी था, मुजरिमाना था, उन्होंने नबी का भी एहतराम नहीं किया। हालांकि अभी भी उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन से निजात मिली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ही के जरिए उन्होंने हैरत अंगेज मोजज़े भी देखे। लेकिन वो सब कुछ भूल गए, उन्हें कम से कम इतना भी ख्याल नहीं आया कि वो खुद अपनी नजात का सबब बनने वाले इंसान की इज्जत ही कर लें। ये भी नहीं कर रहे थे वो। और सबसे अहम बात यह है कि उन्हें अल्लाह ताला का लिहाज नहीं रहा कि ये हुक्म तो अल्लाह की तरफ से आ रहा है, और अल्लाह अब तक हमें कितना कुछ अता कर चुके हैं, नेमतें दे चुके हैं, कितने मोजज़ात हमारी जिंदगियों में हो चुके हैं। वो किसी चीज का लिहाज नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ये रवैया हमें बता रहे हैं कि तुम इंसानों में ऐसे लोग होते हैं जो ये रवैया दिखाते हैं। ठीक है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पे रिस्पॉन्स किया। मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र देखें, फिर भी पेशेंस के साथ उनको वजाहतें दे रहे हैं। क्या शान है, क्या जर्फ है एक नबी का। और वो कह रहे हैं क्या तुम्हें अकल नहीं है? भला मैं अल्लाह के बारे में बात कर रहा हूँ, अल्लाह हुक्म देता है तो मैं पनाह में आता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं और मैं इस तरह की बात मजाक में करूं कि अल्लाह हुक्म देता है। इसका मतलब ये है कि लोगों का मजाक उड़ाना जहालत की निशानी है। ये बात वाज़ेह होगी। एक होता है मजाक करना, ठीक है, इसकी लिमिट्स होती हैं। एक होता है मजाक उड़ाना किसी का। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे लिए भी सबक है कि हमें बद अखलाकी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और हमारा, अगर हमारे साथ कोई कर रहा है तो हमारा रवैया भी बड़ी पेशेंस के साथ हमें अपना रवैया रखना चाहिए। ठीक है। ओके। सो अल्लिम, जरा रिपीट कर लें लफ्जों के मानी ताकि आपको याद हो जाए। वा, और, इज जब, कौला कहा, मूसा मूसा ने, लिए, कौमी कौम ही अपनी, यानी उनकी, मूसा अलैहिस्सलाम की। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, यामुरु वो हुक्म देता है, कुम तुम्हें, अन के, तस्बाहु तुम जिबा करोगे, करते हो, मुदारे है, बकरा एक गाय। कालू उन्होंने कहा, क्या, तत्तखिजु तू बनाता है, ना हमें, हुजुवन हंसी मजाक। कौला उसने कहा, यानी मूसा ने, अऊजु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, अन के अकूनू में हो जाऊं, मिन से, अल जाहिलीन जाहिलों। ठीक है। तो ये बात हुई। अब इसके आगे क्या बात हुई वो हम अगली आयत में देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो रेसिटेशन करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا تؤمر فافعلوا ما تؤمرون صدق अल्लाह العظيم। उन्होंने, यानी बनी इसराइल ने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा, हमारे लिए दुआ करें अपने रब से कि वो बताएं हमें कि कैसी हो वो गाय। उसने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो और ना छोटी उम्र की, दोनों के दरमियान हो। बस करो वो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। आइए देखते हैं। काला से कालू बनता है, QC2। काला, कालू कमजोर फेल है ये। उन्होंने कहा, उदउ, ये है अम्र। हमने QC2 में ही दा, यदउ, उदउ पढ़ा था। ठीक है। उसने पुकारा या उसने दावत दावत दी, या इस तरह के मानों में हम इसको पढ़ते हैं। या उसने दुआ मांगी, ये सब बानी इसके आ सकते हैं। दा, यदउ, उदउ। ठीक है। यानी तू दुआ कर, तू मांग।
उदउ, उदउ, अगर इसके आगे वाव अलिफ लगा दें तो इसकी जमा बन जाएगी, तुम सब दुआ करो। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ मूसा अलैहि सलाम से कह रहे हैं तो इसलिए वाहिद का सीगा है। उदउ, तू दुआ मांग, लना, हमारे लिए, ठीक है, रब्बका, तेरे रब से, यानी अपने रब से, मूसा अलैहि सलाम से वो अब ये डिमांड कर रहे हैं। युबय्यिन लना, तो हमने जैसे पढ़ा, ये वर्ड है बेसिकली मजीद फी फेल है, बय्यना युबय्यिनु, ठीक है, यानी उसने वाजे किया, वो वाजे करता है, बय्यना युबय्यिनु। QC3 के शुरू में आपने ये फेल पढ़ा था, आपको याद है इस तरह का कोई फेल हमने पढ़ा हो पिछले दिनों? बहुत ही स्टार्ट में हमने एक फेल पढ़ा था जो बय्यना युबय्यिनु की तरह की आवाज में आता है। चलिए मैं बता देती हूँ, वो है अल्लमा युअल्लिम, सबसे पहला फेल मजीद फी जो हमने पढ़ा है, अल्लमा युअल्लिमु, उसी के पैटर्न पर है, बय्यना युबय्यिनु, ठीक है, यानी वो वाजे करता है, करेगा। अब आप देख रहे हैं वर्ड है युबय्यिनु, मुदारे के आखिर में आमतौर पे कोई भी जज्म नहीं होती, जबर जेर पेश में से कुछ होता है। लेकिन जो आपको बार बार बताया जा रहा है, पिछली आयत में भी एक वर्ड था कि मुदारे में तब्दीलियां होती हैं कुछ, और वो तब्दीलियां हम QC4 में अगले कोर्स में सीखेंगे, तो यहाँ भी एक खास तब्दीली हो रही है, एक रीजन है जिसकी वजह से जज्म आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है वो आपको अगले कोर्स में पता चल जाएगा, ठीक है। लना, हमारे लिए, कि वो बताएगा हमारे लिए, वो बताता है हमारे लिए, इस सेंस में इसको समझे क्योंकि ये मुदारे है। माँ के, क्या, कैसी, मतलब ये एक क्वेश्चन के लिए आ रहा है कि वो क्या हो, कैसी हो, या वो मोन्नस गाय की बात हो रही है, मोन्नस है, तो वो पूछ रहे हैं कि वो गाय कैसी हो, और पूछें, वजाहत चाहिए, हमें डिटेल चाहिए, ठीक है। कौला, उसने कहा, यानी मूसा अलैहि सलाम ने कहा, इन्नहु, बेशक वो, यकूलु, वो फरमाता है, कौला, उसने फरमाया, उसने कहा, यकूलु, वो फरमाता है, ठीक है, यानी वो अल्लाह फरमाता है, इन्ना, हाँ, इन्ना, वैसे इसका मतलब बेशक होता है, लेकिन फ्लो में आप इसको के भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हाँ वो, बकरतन, बकरतुन, गाय, ला, ना हो, फारिजुन, बूढ़ी, वला, और ना, बिक्रुन, छोटी उम्र की, यानी बच्ची, यानी अर्ली एज, जो बचपन की एज होती है, ठीक है। अवानुन बैना जालिका, बल्कि दरमियान हो इसके, यानी इन दोनों के माबेन हो, दरमियान हो, ये जो मामला, ये जो बात हो रही है, बूढ़े और छोटी उम्र इनके दरमियान हो। हालांकि ये कह दिया ना कि बूढ़ी भी ना हो छोटी भी ना हो, तो भी क्लियर हो गया था कि यंग एज हो, दरमियानी एज हो, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी एक्सप्लेन उनको कर दिया कि दरमियानी उम्र की हो, ये ऐड भी कर दिया, ठीक है। फ़ालू, अब इसके दो टुकड़े होंगे, फ पस, इफ़ालू, तुम सब करो। सबसे पहला टेबल जो हमने QC1 में सीखा, सबसे पहला कुरान का टेबल, फाला, उसने किया, यफालू, वो करता है, इफ़ाल, तू कर, इफ़ालू, तुम सब करो, ये फा के साथ ना इफ़ालू जुड़ा हुआ है, बस तुम सब करो, माँ, जो माँ के मानी कई दो तरह के होते हैं ना, क्या भी, जो, या जिस भी, ठीक है, तो इसी तरह माँ जो, तो मरूना, तुम्हें हुक्म, एक हमने पढ़ा था अमरा या मुरु, आप याद करें जरा, अमरा QC2 में पढ़ा था, हमजा वाला टेबल, अमरा उसने हुक्म दिया, या अमरू वो हुक्म देता है, या मुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरु तुम हुक्म देते हो, आमुरु मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना तुम सब हुक्म देते हो। ये तो एक एक्टिव टेबल है, अगर इसी का पैसिव कर दिया जाए, तामरूना से तुमरूना, तामुरूना से तुमरूना, तो इसका मतलब बन जाएगा जिसको हुक्म, तुम्हें, तुम सबको हुक्म दिया जा रहा है, तामुरूना तुम सब हुक्म देते हो, तुमरूना तुम सबको हुक्म दिया जा रहा है, पैसिव, जिसको हमने मजहूल पढ़ा था QC2 के आखिरी लेसन में, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल्स QC4 में आएंगी कि मजहूल कैसे होते हैं। अच्छा जी, तो आइए हम समझते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। उन लोगों ने कहा, क्या कहा, कि हमारे लिए दुआ करें अपने रब से कि वो बताए कि वो कैसी हो गाय, उसने कहा बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ऐसी ऐसी हो। तो उनका जो नामुनासिब रवैया था ना वो बाकी रहा, और वो फिर से सवाल कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि जरा अपने रब से ये भी पूछो, गोया कि अल्लाह उनका रब तो है नहीं। जब इस तरह की चीजें, जब कोई बड़ी मुश्किल आती थी ना, फिर वो कहते थे हाँ जी हमारा रब हमारे लिए ये कर दे, मूसा आप उनसे दुआ मांगे। और जब इस तरह के एतराजात और बेबुनियाद चीजें उन्होंने करनी होती थी, तजहीक करनी होती थी, नाउजुबिल्ला, तो फिर वो ये कह देते थे आप, आपका रब है ना, आप अपने रब से पूछें। तो अपने साथ कनेक्ट करने की बजाय कि आप हमारे रब से पूछें, वो गोया मूसा अलैहि सलाम के ही जैसे रब हों,
इस तरह से बात करते थे, तो इस हद तक बद अखलाकी उनमें थी। ठीक है। सो ये सवाल गैर जरूरी था। अल्लाह ने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था, वो कोई भी गाय पकड़ते ज़िबा कर देते तो मामला पूरा हो जाता। जब आप डिटेल में जाते हैं, हम बहुत बारीकियों में जाते हैं, तो फिर चीजें उसी तरह से देखी जाती हैं। अब कोई भी गाय वो ज़िबा कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, वो और सवाल कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी अल्लाह से पूछकर उनको मजीद वजाहत कर दी उसकी उम्र के बारे में। अब चीजें क्लियर हो गई। अब उनको चाहिए था वो कुर्बानी कर देते, है ना। लेकिन अभी आप हम आगे देखेंगे कि अभी वो और भी सवाल करेंगे। तो यहाँ अल्लाह का एक रसूल उनसे मुतालबा कर रहा है कि वो गाय को ज़िबा करें, जो बहुत आसान हुक्म था। ये बात हमें भी बहुत सारे असबाब देती है। ठीक है। जैसे एक हदीस हमारे सामने आ रही है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है तो हज करो। अब हुआ क्या, एक शख्स ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हर साल आप खामोश रहे? उसने 3 मरतबा दोहराया। आपने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल तुम पे फर्ज हो जाता, और अगर ऐसा हो जाता तो हर साल हज करना तुम्हारे लिए मुमकिन ना होता। फिर फरमाया, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ रखूं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। इसलिए कि तुमसे पहली उम्मत के लोग इसीलिए हलाक हुए कि उन्होंने अपने अंबिया से बहुत सवाल किए और इनसे बहुत इख्तलाफात किए। फिर जब मैं तुमको किसी बात का हुक्म दूं, उसमें से जितना हो सके उस पे अमल करो, उसे बजा लाओ। और जब किसी बात से मना करूं तो उसे छोड़ दो। यानी जिन चीजों को अल्लाह ने सिंपल रखा है, आसानी दी है, उसके पीछे रीजन है। उसी चीज को फॉलो करो। ठीक है, अपनी समझ के लिए आप सवालात करते हैं, चीजें करते हैं, बट बेबुनियाद ऐसी चीजें जो आपके लिए ही फिर मुश्किल पैदा कर देती हैं। ठीक है। सो ये हमारे लिए बड़ा सबक है हमारी आम जिंदगी में भी। अल्लम लफ्जों के मानी दोहरा लें। कॉलू, उन्होंने कहा, उदउ, तुम दुआ करो, लना, हमारे लिए, रब का, तुम्हारे रब से, युबय्यिनु, के वो बताए, लना, हमारे लिए, माहिया, कि वो कैसी हो, वो जो गाय है। कौला, उसने कहा, मूसा अलैहि सलाम ने कहा, इन्नहु, बेशक वो, यकूलु, वो फरमाता है, यानी अल्लाह फरमाता है, इन्नहा, के वो, बकरतुन, गाय, ला फारिजुन, ना बूढ़ी, वला बिक्रुन, और ना छोटी हो उम्र में, अवानुम बैन गालिक, इन दोनों के दरमियान हो। फफालू, पस तुम सब करो, मा तो उमरून, जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है। सो आगे देखते हैं, अभी एक आयत मुबारक रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब कॉन्वर्सेशन फिर जारी है। अब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो बताएं हमें कि कैसा हो उसका रंग। उसने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो गाय हो, जर्द रंग की, खूब गहरी हो, गहरा हो उसका रंग, अच्छी लगती हो देखने में, देखने वालों को। ठीक है। आइए इन अल्फाज को हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर मैसेज। कालू, फिर से कालू आ गया, काला, कालू, ये अल्फाज बहुत आते हैं। काला, उसने कहा, कालू, उन सब ने कहा, QC2। दआ यदउ उदउ, आप, तुम दुआ मांगो, आप दुआ करो। ये वर्ड अभी हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं। अम्र है ये, वाहिद, एक शख्स को कहा जा रहा है। लना, हमारे लिए, रब का, अपने रब से, तुम्हारे रब से। फिर वही रवैया, मूसा अलैहि सलाम, आप अपने रब से पूछ के बताएं। ऑन ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। युबय्यिन, अभी हमने बात की थी कि बय्यना युबय्यिनु मजीद फी फेल है। जैसे हमने पढ़ा था, अल्लमा युअल्लिमु के ग्रुप से है ये असल में युबय्यिनु है, लेकिन मुदारे में तब्दीलियां आती हैं, कुछ खास रीजंस होती हैं जो हम किसी फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर हमारे लिए पहचान आसान हो जाएगी कि कहाँ पे हमने आखिरी हरकत को जज्म देनी है। तो वो तब्दीलियां बाद में आएंगी। युबय्यिनु, वो बताए हमें या बताता है हमें, युबय्यिन लना, हमारे लिए, माँ के कैसा हो, क्या हो, लौनुहा, उस मोनस का रंग। राइट, लौन जो है वो रंग को कहते हैं। उसके बाद क्या है जनाब, कला, उसने कहा, यानी मूसा अलैहि सलाम ने कहा, इन्नहु, बेशक वो, यकूलु, वो फरमाता है। अब यहाँ हमने पढ़ा था
हु आ रहा है वो, और फिर यकूलू भी वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम यानी वो अल्लाह खास उस तरफ तवज्जो दे दिलाकर एम्फसाइज करके बात हो रही है कि वो अल्लाह फरमाता है, इन्नहा, कि बेशक वो, के वो, मोनस हा, राइट, बकरतुन गाय, सफरा जर्द, जर्द रंग, ठीक है, उसको कहते हैं। ओके, और उसके बाद क्या है, फाकिउन, ठीक है। तो फाकिउन गहरा रंग, ये बेसिकली फाका होता है वो गहरे, गहरे रंग का हुआ, ठीक है। फाका वो गहरे रंग का हुआ, यफका वो गहरे रंग का होता है। तो फाकिउन इसम फाइल है, ठीक है। अभी हम ये 6 चाबियां देखेंगे, आपको मजीद समझ आ जाएगी, यानी जो गहरे रंग का हुआ हो उसको हम इसम फाइल कहेंगे ना, ठीक है। ये भी हम देखते हैं। लौनुहा उसका रंग, तसुर्रु अच्छी लगती हो, सर्रा यसुर्रु, हमने QC 2 में पढ़ा था, जन्ना यजुन्नु, उसने गुमान किया वो गुमान करता है, उसी से सर्रा यसुर्रु बनता है, ठीक है। और यसुर्रु यसुर्रु ना तसुर्रु, तसुर्रु का मतलब क्या होगा फिर, कि सर्रा उसने खुश किया, यसुर्रु वो खुश करता है या अच्छा, अच्छा लगता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तसुर्रु तुम अच्छे लगते हो, एक तो ये है ना, और तसुर्रु एक मोन्नस है, वो अच्छी लगती है, तो यहाँ मोन्नस के मानों में तसुर्रु आ रहा है, ये टेबल अभी हम देखेंगे, ठीक है। अन नाजिरीन देखने वालों को, नाजिर नाजिरीन हम कहते हैं, नाजिरीन और हजरा अपनी नाजरीन को जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, है ना, सामीन और नाजरीन, है ना, ये वही अरबी से आता है बेसिकली। ओके, सो इस बार भी उनका रवैया वैसा ही था कि जरा अपने रब से पूछो तो सही कि उसका रंग कैसा हो। फिर एक बार मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होने की बजाय, आप देखें दीन के मामले में जब दावत की बात हो, या बीइंग ए पेरेंट जब बच्चों की पेरेंटिंग की बात हो, आखिर ये जितने काम हम दुनिया में कर रहे हैं ये अल्लाह की मर्जी के हैं ना, अल्लाह की इबादत के तौर पर अगर हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, माँ बाप, टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो ये सोच कर पढ़ा रहे हैं कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, उसका रिवॉर्ड मिलेगा, वो इबादत है। तो कितना पेशेंस चाहिए, ये हमें नबी सिखा रहे हैं। आपको पता भी चल रहा है कि गैर जरूरी हरकतें हैं, आपका एक मकाम भी है, फिर भी आप उनके साथ अच्छा रवैया लेके चल रहे हो, ताकि वो किसी ना किसी तरह चीजों को एक्सेप्ट करें, उनके उनके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी आए। तो इसके लिए टीचर को भी, पेरेंट को भी, नबी को भी, सबको पेशेंस के साथ, मुमकिना जो है ना उनके साथ मुआमलात करने पड़ रहे हैं। तो मूसा अलैहि सलाम यहाँ भी नाराज नहीं हुए, दोबारा अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं, कि बिल्कुल साफ और वाज़ेह अंदाज में उन्हें जवाब देते जा रहे हैं, ठीक है। और गाय के रंग के बारे में 3 अलामतें दे दी गई, एक सफरा, एक फाके और एक तसुर। अब और मुश्किल हो गया ना ऐसी गाय ढूंढना, जितने सवाल वो करें उतनी मामला मुश्किल हो रहा है। तो एक तो रंग बता दिया अल्लाह ताला ने कि वो जर्द हो, दूसरा ये कि वो गहरा जर्द रंग हो। अब हर रंग के भी तो शेड्स होते हैं, है ना। फिर फरमा दिया कि वो दिखने में अच्छी लगती हो, अल्लाह, अब 3 चीजें और ऐड हो गई, ठीक है। सो बनी इसराइल की इतनी सारी बेतुकी बातों के बाद भी तू नाराज ना हुआ, ए अल्लाह तो कितना मेहरबान है, हम पर भी रहम फरमा, हमें भी माफ फरमा, हम यहाँ ये दुआ मांगते हैं। चलें जी, वर्ड के मीनिंग देख लें। कॉलू उन्होंने कहा, उदू तू दुआ मांग, लना हमारे लिए, रब्बा का तुम्हारे रब से, युबयिनु या युबयिन वो बताता है बताएगा, लना हमारे लिए, मा लौनुहा कैसा हो उसका रंग। काला उसने कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलू वो फरमाता है, इन्नहा बेशक, बेशक वो, या कि वो जो गाय है, बकरतुन गाय, सफरा जर्द हो, फाकी उन गहरे रंग की, लौनुहा उसका रंग यानी गहरा हो उसका रंग, तसुर्रु भली लगती हो, अच्छी लगती हो, नाजिरीन देखने वालों को। तो ये कॉन्वर्सेशन हुई जब मूसा अलैहि सलाम ने कहा अपनी कौम से, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि तुम ज़िबा करो एक गाय। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। उसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से, राइट। और उन्होंने कहा, दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो बताए हमें कि कैसी हो वो गाय। उन्होंने फरमाया, बेशक वो फरमाता है कि गाय ना बूढ़ी हो ना छोटी उम्र की हो, दोनों के दरमियान हो, बस करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो बताए हमें कि कैसे हो उसका रंग। उसने कहा, बेशक वो फरमाता है वो गाय जर्द हो, उसका रंग खूब गहरा हो, अच्छी लगती हो दिखने में।
तो ये मामलात अभी चल रहे हैं, दिल तो चाह रहा है अगली आयत भी पढ़ लें, लेकिन जाहिर है अगली लेसन में पढ़ेंगे इसके बाद क्या हुआ। यानी इतनी तजस्सुस हो रहा है ना, जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, आजकल कोई स्टोरी हमें बताई जा रही है या हम रीड कर रहे हैं, तो आगे आगे तजस्सुस बढ़ता जाता है, क्यूरियोसिटी कि आगे पता चले क्या हुआ, है ना। खैर, हमें सबक ये मिला कि बनी इसराइल ने ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बल्कि अल्लाह के अहकाम के साथ भी तौहीन का मामला किया। अल्लाह ताला हमें इस रवैये से महफूज रखे। बनी इसराइल के दिलों में खुद उन्हें निजात दिलाने वाले की भी कोई इज्जत और अजमत नहीं थी, ये बात भी हमें मालूम हो गई। बनी इसराइल की नाफरमानी और हद से गुजरने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया। ये हमारे लिए आज का बहुत बड़ा सबक है, हमें अपनी जिंदगियों में अपनाना है। अगर हमें बड़ी अचीवमेंट्स करनी है, बड़े काम, मुहाज पे काम करना है, आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार के मर नहीं जाना, तो फिर हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और सब्र करने वालों के साथ तो अल्लाह होता है, इन अल्लाह मासाबिरीन, है ना। बनी इसराइल के सवालात ला इल्मी या जहालत की वजह से नहीं। एक होता है ना कि एक इनोसेंस है इंसान की, कि वो इतना इनोसेंट है, वो सवाल कर रहा है, अपनी मासूमियत में कर रहा है, या उसकी नीयत साफ है। बनी इसराइल की तो नहीं थी ना साफ, अल्लाह को पता है, अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। और उनका रवैया वाज़ेह था उनके नबी के सामने भी। तो ये कहा जा रहा है कि ला इल्मी या जहालत की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर सरकशी और बगावत का रवैया वो दिखाते थे अपने नबी को। अस्तगफिरुल्लाह। इसके बावजूद अल्लाह ताला उनके सवालों के जवाब दे रहा है। तो समटाइम्स हमारे स्टूडेंट्स भी कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन हमें अपने रवैये से उनको पॉजिटिव करना होता है, चाहे उनकी इंटेंशंस अच्छी ना हो। ठीक है। यकीनन अल्लाह ताला निहायत ही बुर्दबार, बेहद माफ करने वाला और रहीम है। ए अल्लाह, हमारी मदद फरमा कि हम सारी जिंदगी तेरी नाराजगी वाले कामों से दूर रहें। हमें अपनी जिंदगियों को देखना है कि हम कितना पेशेंस रखते हैं जब लोग ऐसा कर रहे हों। हम भी गैर जरूरी चीजों में बेतुके बगावत के लिए, टीज करने के लिए इस तरह के सवालात तो नहीं करते मुख्तलिफ मामलात में, और या अमल करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अपनी जिंदगी में ढूंढनी है, बेहतर प्लान करना है कि इंशाल्लाह मेरे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला मुझ पर हमेशा रहम और करम फरमाता है। इसलिए मैं भी रोजाना दिल की गहराइयों से तौबा करूंगा और अल्लाह का जिक्र और शुक्र करूंगा इंशाल्लाह। और दूसरों को ये मैसेज हिकमत के साथ कन्वे करना है। अस्मा और अफ़ाल देखते हैं जनाब। जाहिल या जाहिलीन आया हुआ है आयत के आखिर में। मुजक्कर की जमा हमने QC 1 में सीखी थी, जाहिलून और जाहिलीन दोनों बनती है। तो वाहिद हम देख लेते हैं, वो है जाहिल। जिसके पास इल्म ना हो, जाहिर है, जो ला इल्म हो उसको जाहिल ही कहा जाएगा ना। तो बिक्र, छोटी, छोटी उम्र। ठीक है। अबकार जो है वो उसकी जमा है। लौन, लौन जो है ये रंग को कहते हैं, इसकी जमा है अलवान। ये एक ही पैटर्न, जमा मुकस्सर हमने सीखा था ना QC 2 के आखिर में, एक ही पैटर्न की जमा आ रही है, अबकार अलवान, है ना। ओके। अफाल देखते हैं जी, QC 1 वाले सेहतमंद अफाल। ज़बह, यज़बहु, यज़बहूना, तज़बहु, अज़बहु, तज़बहूना, एज आई टोल्ड यू, ये असल में तज़बहूना है। यहां से आप देख लें, फतह यफ्तहु के बाब से ये एक सेहतमंद फेल बन रहा है, ज़बह यज़बहु, तो यहीं पे तज़बहूना आता है, लेकिन मुजारे में तब्दीली की वजह से नून गायब हुआ है। ज़बह यज़बहु, इज़बह, ज़ाबिहुन, मज़बूहुन, ज़िबहुन, ज़बहुन, मजबूहन और जिबहन, और जबहन जो है वो इसका मजदर है। ओके। अच्छा, ये जो है ना, ये फारिद, ये बेसिकली आ रहा है इसम फाइल के तौर पर हम कह सकते हैं, यानी जो बूढ़ा बूढ़ा हो गया हो उसको फारिज कहेंगे। और इसका अगर पूरा हम टेबल देखें ना, तो ये बनता है फारूजा या फरूजु। इफ उफरुज फारिजुन, कोई नहीं, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे फराद, ये पे यहाँ पर फरादतुन। लेकिन ये याद रखें, इसको आप अगर एक नजर देख लें, याद ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। द रीजन इज कि ये कारूमा का एक नया पैटर्न है जो आपने भी पढ़ा ही नहीं है। ये QC 4 में पढ़ेंगे, जैसे हमने QC 1 में 4 पैटर्न पढ़े थे ना, फतहा, नसर, दरब, सामया। तो कारूमा नहीं पढ़ा था, ये बड़ी नई बात है, ये हम QC 4 में पढ़ेंगे। तो इसको आप अब अगर लीव कर दें तो कोई मसला नहीं है। फ़ाला यफ़ालू से इफ़ालू आया था, फिर फ़का, फ़तह यफ़तहू की तरह फ़ाका, यफ़काऊ, इफ़का, फ़ाकिउन, मफ़कूउन, और फिर फ़क़ून या फ़ुकून उसका मस्तर होगा। सही है। एंड फ़ाका जो होता है, इसका मतलब होता है वो गहरे रंग का हुआ। तो ये एक नया लफ्ज़ है लेकिन है सेहतमंद।
QC2 से कमजोर अफाल सेहत यकसा और हमजा वाले अगर हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये यामुरु, अमरा यामुरु हमने QC2 में पढ़ा था, ये वो है। हुजुवन हंसी मजाक, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये इसका मसदर आ रहा है, असल में होता है हजा। ठीक है, उसने मजाक किया या मजाक उड़ाया, ठीक है। हजा यहजाउ इजा, हाजिउन माजूउन हुजूउन या हुजुवन हुजुवन, ये जो हम वर्ड पढ़े ये वो है। ठीक है, तो ये मसदर असल में इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, फतह यफ्तहु से है, लेकिन क्योंकि इसके रूट लेटर्स में हमजा आ रहा है इसलिए ये हमजा वाला कहलाएगा। ओके, अरूजु इसी तरह हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह दा यदू से उदू, ये हमने QC2 में बहुत प्रैक्टिस किया था। अभी नया कुछ जो है वो हमारे पास तसुरु, ये सर्रा यसुरु से आ रहा है। जन्ना यजुन्नु जुन्ना QC2 में पढ़ा था। तो सर्रा यसुरु सुर्रा, सारुन मसरूरुन और सुरूरुन। तो ये जो सर्रा है इसका मतलब होता है उसने खुश किया या वो अच्छा लगा, या कुछ इस तरह से इसका मानी बन सकता है। मजीद फी फेल में से हमने बय्याना युबय्यिनु का जिक्र किया था, 2-3 दफा आई थिंक आया है इसमें, 2 दफा तो ये नजर आ रहा है, आयत नंबर 67 में और यहाँ आयत नंबर 69 में, 68 और 69 में। युबय्यिनु, तो अल्लामा युअल्लिमु QC3 का सबसे पहला टेबल जो हमने पढ़ा है, ये देखें यहाँ आ रहा है अल्लामा सबसे पहले। इसी के पैटर्न पे बय्याना युबय्यिनु, बय्यिन मुबय्यिनुन मुबय्यनुन तबयीनुन, जैसे अल्लामा से तालीम बना था इसी तरह बय्याना से तबयीन बन रहा है। बिल्कुल अल्लामा का अगर आपको आता है तो ये टेबल आपको आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी आयत नंबर 69 तक मुकम्मल हो गई है, हम ग्रामर की तरफ चलेंगे और बहुत ही आराम से एक टेबल हम अपना अभी मुकम्मल करेंगे। हमारी और भी मैम्स ने ज्वाइन कर लिया माशाल्लाह, हम सो हैप्पी कि आप लोग क्लास में हैं। ओके सो राइट, तो मुझे जरा बता दीजिए कि मैंने वेट अ लिटिल, यस, अब मुझे बता दें कि स्क्रीन बेहतर है, कोई ज्यादा बॉक्सेस वगैरह तो नजर नहीं आ रहे स्क्रीन पर, जो ब्लैक बॉक्सेस आ रहे थे। नहीं, एक ही छोटा सा है, वो साइड पे है, लेफ्ट मोस्ट पे। ठीक है, ठीक है। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना नहीं जी, कुछ? नहीं। हाँ जी, नहीं मैंने साइड पे कर रही है, कुछ टेक्निकल इशू है तो इनशाला ज्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप ड्यूरिंग क्लास मुझे बताइएगा। जी। ओके, ग्रामर से जो टेबल आज हम सीख रहे हैं वो है आता, लेकिन वो आता है अस्लामा युस्लिमू के पैटर्न पे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है और सिंपल तरीके से हम इसको समझ लेंगे, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। और मकसद यही है कि हम इनको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कराते जाएं अपने जहन से। और अगर ऑफ कोर्स फर्स्ट लेवल पे हमें हर टेबल 100% नहीं भी याद हो रहा तो उसमें सरदर्दी नहीं बनानी, हमारे टीचर्स ये बताते हैं। मकसद है कुरान समझना, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें याद होती हैं। QC1 की पहले याद नहीं हो रही थी, अब QC1 की अच्छे से याद है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें याद हो जाती हैं, ज़हन बहुत ही मजबूत है। लेकिन अगर आता का टेबल या पिछले टेबल जो QC3 में सीखे हैं आपको परेशान कर रहे हैं कि मुझे याद नहीं हुए, आप कोशिश अपनी जारी रखिए। लेकिन अगर पूरी तरह नहीं भी होता कोई बात नहीं, आपको कम से कम पहचान हो रही है, अपने कुरान समझ रहे हो, जहां जहां आपको समझ आने में बेहतरी हो रही है, तो यही कामयाबी है। ठीक है, डिसअपॉइंट होके लीव करना मकसद नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इसलिए लीव कर देते हैं हमें सारे टेबल नहीं याद हुए। ठीक है, तो ये हल नहीं है, बल्कि ये गलत डिसीजन है। सो आता अस्लामा के पैटर्न पर है। अब ये हम इसको यहीं पर एक सिंपल सा मसला अपना हल कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। और वो मसला वो ये आ रहा है कि आप कह रहे होंगे कि आता पे कैसे आ रहा है, एक तो ये कमजोर लग रहा है या हमजा वाला लग रहा है, अभी हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ही है, ये कमजोर भी है और हमजा वाला भी है। लेकिन अस्लामा के वजन पे कैसे आता, अस्लामा तो मिलता ही नहीं है। तो देख लें, ये बेसिकली है, दो हमजा है शुरू में, ये देखें, मिल गया ना साथ, हमने भी उसको छोड़ा नहीं वैसे। अतया, अस्लमा, राइट। तो इस तरह से है।
फिर जब बनता है युस्लिमु, तो वो भी उसी तरीके से आगे कंटिन्यू हो जाता है, जैसे हम कहते हैं यू ती यू, है ना। ये देखें, इस तरह बनता है यू ती यू। कैसे? क्योंकि असलमा से बन रहा है ना, युस्लिमु। अब अगर असलमा से युस्लिमु हमने पढ़ा था, ये तो एक बेसिक पैटर्न है, ये तो हमने याद कर लिया था। अब उसके साथ मिलाने के लिए हमें बताया जा रहा है कि असल में अस्लमा युस्लिमु अतया युक्तियु बिल्कुल आवाज मैच हो रही थी। लेकिन अरबों के, अरबी जुबान के कई रूल्स हैं, हमारे उर्दू के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, अरबी तो सबसे स्ट्रांग जुबान है, उसके तो होंगे ही। तो जैसे एक उसमें ये होता है कि अगर दो हमजा एक साथ आ रहे हैं तो उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इन दो हमजा को वो इकट्ठा कैसे कर रहे हैं, ये देखें। ये जो दो हमजा हैं, इनको इकट्ठा कर दिया और खड़ी जबर दे दी। यानी हमने ये पढ़ा था ना, जैसे दो अलिफ या दो जबर मिला के एक खड़ी जबर बन जाते हैं। तो ये दो को इकट्ठा कर दिया गया ना, तो जबर को खड़ी जबर में तब्दील कर दिया गया। तो ये बेसिकली ये तब्दीली हुई है यहाँ पे, पहली बात। ठीक है। उसके बाद ताया, तो हमने हमेशा से पढ़ रहे हैं कि क्योंकि ये कमजोर है, ये जो आ ता है ना, इसमें रूट लेटर्स हैं हमजा, ता और या। तो आप जरा मुझे माइक ऑन करके बताएं, इन तीनों रूट लेटर्स को देख के क्या लग रहा है, ये सेहतमंद फेल है, हमजा वाला है, कमजोर है, डबल हरूफ वाला है, कौन सा है? कमजोर भी है और हमजा वाला भी है। वेरी गुड। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा, आता को देख के पता नहीं चलेगा, रूट लेटर्स पता होने चाहिए। रूट लेटर्स इसके हैं, ये आपको जेन में रखने ही पड़ेंगे, याद रखने ही पड़ेंगे। हमजा, ता और या, ये इसके रूट लेटर्स हैं। तो असली रूट लेटर्स, असली लेटर्स लेटर्स जो होते हैं ना, वो तीन ही होते हैं, हमने पढ़ा था। एक हमजा है, इसलिए इसको हम हमजा वाला भी कहेंगे, और एक यार है, इसलिए हम कमजोर कहेंगे। तो दोनों सर्टिफिकेट इसको मिल गए हैं, दो तरह का इसको हम टेबल कह सकते हैं। अब मसला ये है कि अब इन तीनों के अलावा मजीद क्या आया है इसमें, क्योंकि आता मजीद फी है ना। तो एक हमजा तो ये था, एक हमजा मजीद आ गया, दो हमजा है, ठीक है। और तो इसका मतलब है इस पूरे ये आता मजीद फी फेल क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एक हमजा ऐड हुआ है, मजीद आया है, इसके तीन हरूफ असली में शामिल हो गया है। ठीक है। और ये हमेशा मादी के पहले वर्ड के मुताबिक ही देखा जाता है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता चीजें मजीद अंडरस्टैंड होंगी। हम बात कर रहे थे कि दो हमजा मिलकर मिले तो एक हमजा पे उन्होंने जबर दे दी। तया को क्या किया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कमजोर फेल हरूफ होते हैं, वो क्योंकि कमजोर होते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी वो आ जाते हैं टेबल में, कभी वो चले जाते हैं, कभी उनकी जगह दूसरा कमजोर हर्फ रिप्लेस करता है। जैसे या चला गया, वाव आ गया, तीन है ना कमजोर हरूफ, अलिफ वाव या। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हुआ है, जबकि हमें ये मालूम है कि ये जो कमजोर हरूफ हैं, ये कोई इन पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये कभी भी चले जाते हैं। तो इसलिए इसको अरब ने, या आप कह लें ग्रामर ने, या बाकी अल्फाबेट्स ने ये डिसाइड किया कि इस या का तो कोई एतबार है नहीं, इसको इतनी वैल्यू नहीं करनी यहाँ पर। ये वाली, ये जो या है ना, इसको इतनी वैल्यू ना करो, इसलिए उसके ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग जो हरकत है उसको हटा दो। या की जरूरत नहीं है, ये वाला या, ये जबर यहाँ ले जाएं इसके साथ। तो ये दोनों जबर मिलकर, जबर जबर मिलके खड़ी जबर हो गए। ठीक है। तो एक ये बात आप कह सकते हैं। दूसरा, इसको इस तरह, क्योंकि टिप्स ही है ना याद करने की, अरबों को तो इन टिप्स की जरूरत नहीं है, हमने टिप्स ही तो बनानी है। तो एक टिप इसकी ये हो सकती है कि जो जबर होता है ना, जबर, वो अपने बाद अलिफ मांगता है। ये एक एक टर्म है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। इसी तरह अरबी में जो जेर होती है वो आमतौर पे अपने बाद या मांगती है, जो पेश होती है वो आमतौर पे अपने बाद वाव मांगती है। क्यों ऐसे कहते हैं? हमने कुरानी कायदे में भी पढ़ा था, अलिफ किसी चीज पे जबर हो या साथ अलिफ हो, आवाज एक ही बनती है। जैसे मीम है तो माँ, मीम के नीचे जेर हो या हो, आवाज मी बनती है। मीम पे पेश हो या वाव हो मीम के साथ, आवाज मुंह बनती है। तो इनका इस्तेमाल एक जैसा है ना। तो एक ये रीजन भी बताई जाती है, क्योंकि ता सेहतमंद हर्फ है, उसकी वैल्यू है, ता के ऊपर जबर है, और जबर अपने बाद अलिफ मांगती है, तो वो अलिफ जबर के, मतलब अलिफ जबर के बराबर है। तो एक उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये यूं भी कहा जाता है, या यहाँ पर इसीलिए अलिफ आ गया, क्योंकि खड़ी जबर को अलिफ भी कहते हैं। तो ये दो दो तीन तीन टिप्स आप अपने, आप अपनी टिप बना सकते हैं इवन इसको याद रखने के लिए।
ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने या को कमजोर होने की वजह से वैल्यू नहीं किया, और उसके ऊपर से जो सेहतमंद जो ता था उसको वैल्यू किया, और कमजोर वाले की असल हरकत ता को दे दी, तो वो खड़ी जबर बन गया। तो दिस इज द रीजन, अता अताया से आता बन गया। बस एक बार इसको समझ लें और उसके बाद टेबल को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। कुछ लोग तो इतनी डिटेल में जाते ही नहीं, कहते हैं हमारी मेमोरी अच्छी है, वैसे याद कर लेंगे कि असलामा की ग्रुप से है ये हमें हम ना भी बनाए। कुछ बनाते हैं तो कहते हैं हमें ज्यादा अच्छा याद होता है। तो अपनी अपना 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 अंदाज होता है याद करने का। इसी तरह तीयू में भी यही हुआ। युस लीमो युक्तियु, तो ये यहां तक तो सेम जा रहा है। युसली युक्ति, यहां तक तो सेम है। मसला आ रहा है पेश का, यहां आखिर में पेश है ना। लेकिन जो आप टेबल अभी पढ़ेंगे, असल लफ्ज उसमें बनेगा युक्ति। उसमें मैंने यहाँ पे पेश लगाया लेकिन जबर है, युक्ति युतूना, अभी आप देखेंगे। ठीक है। तो वो युक्ति कैसे बना, वही वजह कि या क्योंकि कमजोर है तो उसकी जो पेश है ना उसको खत्म कर दिया गया, जज्म दे दी गई। ठीक है। खैर इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं, आपको मजीद समझ आएगा, और कोई मसला नहीं है। इतनी डिटेल में कई लोग कहते हैं ना जाए, हम ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। कि उसी वन में हमने 4 पैटर्न पढ़े थे, फतह, नसरा, दरब, समया। ठीक है। और ये सारे वो थे जो सेहतमंद हैं। इनके रूट लेटर्स 3, जो असली होते हैं रूट लेटर्स, उनके साथ कोई इजाफा नहीं होता, ये वो वाले अफाल हैं। इन्हीं 4 के ग्रुप में आने वाले कमजोर फेल, यकसा हरूफ वाले और हमजा वाले हमने QC2 में सीखे थे। और जब QC3 में आए तो खास बात ये हुई कि QC2 और 1 की तरह वो अफाल जिनमें 3 हरूफ थे वो तब्दील हो गए। कैसे तब्दील हुए कि उन 3 हरूफ के साथ कुछ मजीद भी अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे अल्लामा में आइन लाम मीम 3 हरूफ असली हैं, और उनके साथ एक लाम एक्स्ट्रा आ गया, एडिशनल, मजीद, इसलिए वो मजीद फी हो गया। तो QC3 के सारे फेल मजीद हैं, उनमें 3 के साथ कुछ इजाफा हो रहा है। तो आज हम ये वाला पढ़ रहे हैं जो कि हमजा की कैटेगरी में आ रहा है। वैसे तो असलामा असलामा जैसा है, ये देखें, अताया, लेकिन क्योंकि वो हमजा वाला भी है इसलिए उसको यहाँ लिखा है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ओके। तो आगे चलते हैं। वेरी सिंपल, हमने सारी डिटेल कर ली, अब हम सिर्फ टेबल की प्रैक्टिस करते हैं। 8 पैटर्न थे। तालीम और मुहासबा इस्लाम की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। और इनसे जो माजी बनता है तालीम से अल्लामा था, मुहासबा से हासबा था, इस्लाम से अस्लामा था, इख्तलाफ से पहला लफ्ज टेबल का इख्तलाफा था, और इस्तिग़फ़ार से इस्तग़फ़रा था। तो ये रेड वाले सारे माजी के पहले लफ्ज हैं, टेबल का पहला लफ्ज है। और ये जो पूरा टेबल हम पढ़ते हैं ब्लू वाले, उसका आखिरी लफ्ज है, यानी मस्तर। ठीक है। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तो इनको फाइन लाम की फैमिली से समझने का जब जहन हो फ्रेश, तो आप किसी टाइम इस स्लाइड पे भी गौर करें, जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। आता, हमारे पास लफ्ज आ गया जो हमने समझ लिया, अताया से आता बना। उसने दिया कुछ भी, उसने कुछ दिया। ठीक है। तो ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है, राइट। आपको मैंने बताया था कि हदा हदाऊ का टेबल पिछले कई टेबल्स में हम ये सीख चुके हैं, QC2 में हमने पढ़ा था, राइट। और इसमें हदा का को हम वहां पर बेस बनाते हैं जहां कोई ऐसा टेबल आ जाए जिसके आखिरी जो लेटर है, हर्फ है, वो कमजोर है रूट लेटर्स में। यानी इसके रूट लेटर्स कौन से हैं, अभी हमने पढ़े थे, हमजा, ता, या। और एक हमजा जो है वो इजाफी है, हम कह सकते हैं। ठीक है। हमजा ता या आखिर में कमजोर आ गया ना। तो जब किसी भी फेल के रूट लेटर्स में आखिरी कमजोर हो, चाहे वो वाव हो, चाहे वो अलिफ हो, चाहे वो या हो, ऐसे फेल को पढ़ते हुए हम हदा को जरूर याद करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कोई भी टेबल जिसके रूट लेटर्स में आखिरी कमजोर हो, उसके लिए हदा को जरूर याद करेंगे, क्योंकि वो हदा की जैसी आवाज लेगा। हदा वाली 5 बातें उस पर अप्लाई होंगी। पहली बात हमने पढ़ी थी, हर टेबल में होता है नसरा नसरू, फायला फायलू, ऊ, पेश की आवाज। लेकिन जब इस टाइप का टेबल आता है तो वो हदा के पैटर्न के मुताबिक हदू नहीं बनता बल्कि हदाऊ बनता है।
यानी अगर आखिर में, ये देखें खड़ी जबर आ रहा है, अलिफ की आवाज आप कह लें, तो उसके जमा में जबर आएगा, पेश नहीं आएगा। नसरा से नसरू था, दरबा से दरबू, सबसे ऐसे था, लेकिन इसमें हदू नहीं होगा बल्कि हदऊ होगा। इसी तरह आता में भी क्योंकि आखिरी कमजोर है तो हम यही रूल फॉलो करेंगे। आता से आतू नहीं कहेंगे बल्कि आतऊ कहेंगे, बस इतनी सी बात है। ये पहली बात है अदा की। ठीक है, आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। आता उसने दिया, आतऊ उन सब ने दिया, आतई था तुमने दिया, आतई तू मैंने दिया, आतई तुम सब ने दिया, आतई ना हमने दिया। आतत उस औरत ने दिया। आता, आतऊ, आतईता, आतई तू, आतई तुम, आतई ना, आतत। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं इस तरह के हदा, जैसे हमने हदा हदऊ जैसे अब तक इतने टेबल हमने पढ़ लिए। जजा जजऊ ये तो QC 2 में ही पढ़ा था। QC 3 में देखिए हमने वल्ला वल्लऊ पिछले लेसन में पढ़ा है, अलका अलकऊ, और आज हम आता आतऊ पढ़ रहे हैं। इन सब के क्योंकि आखिरी हर्फ कमजोर हैं तो इन सब की जमा बनाते हुए हदू जजू वल्लू नहीं आता बाकी टेबल्स की तरह, बल्कि जबर आता है। हदऊ जजऊ वल्लऊ अलकऊ आतऊ, बस ये बताया जा रहा है। ठीक है, बातचीत भी हम कर सकते हैं इस तरह, हल आता, क्या उसने दिया, नाम आता, जी हाँ उसने दिया, एंड सो ऑन। इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। हल आता जकाता, क्या उसने जकात दिया या जकात दी। नाम आता जकाता, जी हाँ उसने जकात दी। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम मुजारे में आए तो मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि युतियु लफ्ज बनता है युस्लिमु जैसा, लेकिन आखिरी क्योंकि कमजोर है तो वो उसकी सेहतमंद पेश, युतियु पेश एक वैल्यू वाली हरकत है, उसको हटा के जज्म लगा रहे हैं, युति बना रहे हैं। ठीक है, और इसकी जमा बनेगी युतूना, जैसे यहदी यहदूना था, ऐसे ही युति युतूना बनेगा। ठीक है, युति युतूना, तूती ऊती तूतूना नूती। राइट, और उसको अगर हम आगे देखें, ये देखिए यादी यादूना, यज्जी यज्जूना, युवली युवल्लूना, युल्की युल्कूना, यूती यूतूना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि बाकी सब में क्योंकि इसके बाद हमजा आ रहा है ना तो झटके से पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ हमजा के बाद आपको वाव नजर आ रहा है तो इसको झटके से नहीं पढ़ना है। गौर से सुने, युवती युतूना, तूती ऊती ऊती, झटके से नहीं पढ़ना है इसको। तो उतूना नूती। ठीक है, इन चीजों का भी ख्याल करना होता है। ये सारी बोलचाल की प्रैक्टिस भी आप कीजिएगा। जैसे हल युक्ति जका, क्या वो जकात देता है, तो आप कहेंगे जी हाँ वो जकात देता है। क्या वो सब देते हैं, ये सब प्रैक्टिस आप कर सकते हो जब आपको टेबल याद होगा। अस्लामा से अमर बना था अस्लिम, अस्लामा युस्लिमु अस्लिम, है ना। यानी आखिर में जज्म और सेकंड लास्ट के नीचे जेर आया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां भी उस हिसाब से देखा जाए तो आतिज बनता है। क्या बनता है, आतिज, अस्लिम, आतिज। राइट, लेकिन ये हदा हदऊ वाले जो टेबल होते हैं ना जिनका आखिरी हर्फ कमजोर होता है, उनकी एक पहचान हमने ये भी देखी है कि आखिरी वाले, ये जो कमजोर वाला हर्फ होता है ना अम्र के अंदर, वो वैसे ही भाग जाता है डर के। ये हमने QC 2 में भी पढ़ा था, है ना। तो आखिरी जो कमजोर हर्फ हो उसको अमर में लिखा ही नहीं जाता, कंसीडर ही नहीं किया जाता। इसलिए हम इसको आती ही नहीं पढ़ेंगे, आती पढ़ेंगे, आती तू दे। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। ये देखें सब यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनको बारी बारी प्रैक्टिस कीजिएगा। आखिरी 3 जो है वो QC 3 में आपने सीखे हैं, पहले 2 QC 2 में। आती तू दे, आतू तुम सब दो, ला तूती तुम मत दे, ला तू तुम सब मत दो। आती तू दे तो आप मुदारे से जवाब देंगे ऊती। ये जब आपको टेबल आ जाएगा तो उसके बाद ये बोलचाल आप कर सकते हो। तो प्लीज इसको मिरर के सामने जरूर प्रैक्टिस किया करें अगले वीक के लेसन से पहले। ला तूती तू मत दे, ला ऊती मैं नहीं दूंगा। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आखिर में आपके थ्रू भी प्रैक्टिस हो जाएगी। असलमा से मुस्लिमुन मुस्लमुन बना था और फिर इस्लामुन बना था। तो यहाँ क्या हो रहा है, आता से बनता क्या है, अगर मुस्लिमुन था तो यहाँ बनता है मोतीयुन, है ना। लेकिन हदा हदऊ वाला जो टेबल है उसमें मैंने कहा था ना 5 बातें होती हैं, तो पांच एक बात, जो पांचवी बात है ना वो ये है कि इसके इस फाइल में आखिरी हरकत को नहीं, आखिरी कमजोर फेल को नहीं लिखा जाता। तो मोतीयुन का या यहाँ से भी भाग गया, जैसे अमर के आखिर से या हमने हटा दिया था, यहाँ भी हटा दिया, तो इसको मुतिन पढ़ेंगे, मोतीयुन नहीं पढ़ेंगे, मुतिन, फिर मुतन, और उसके बाद जैसे पढ़ा था इस्लाम उस तरह आता से ईता। तो यहां भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्क नहीं आ रहा, इस्लामुन ईताउन,
ईताउन, तो जबर जेर यहाँ पे सेम है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ आसानी हो गई। मोतिन देने वाला, मोतन जिसको कुछ दिया जाए, ईताउन देना। अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंत मोतिन, क्या आप देने वाले हो? तो आप कह सकते हो नाम अना मोतिन, राइट। हल अंतुम मोतूना, क्या तुम सब देने वाले हो? जमा। तो आप कहते हैं नान नाहनु मोतूना, जी हाँ हम सब देने वाले हैं। अब आखिर में मोनस भी हमने देख लिया, आता से आतत और यूती से तूती। वेरी सिंपल। अब मैं चाहूंगी मैंने बहुत ही बगैर रुके जो है वो चीजें बस एक्सप्लेन कर दी, बता दी हैं। मैं चाहूंगी आप में से कोई एक मैम हमारी जो जिनके लिए पॉसिबल है माइक ऑन करना, अगर वो टेबल सुना दें पढ़ के, ताकि एक दफा इसकी प्रैक्टिस हो जाए। जी सिस्टर्स, अगर आप में से कोई किसी के लिए पॉसिबल है तो आप माइक ऑन कर सकते हैं। जस्ट वंस आपको टेबल ही पढ़ना है इसको देखकर, और कोई एक्टिविटी नहीं है। इज दिस पॉसिबल फॉर यू? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम टेक्निकल भी हो सकता है माइक ऑन होने में, मे भी। चलें। आता उसने दिया, आतऊ उन सब ने दिया, आतईता तुमने दिया, आतईतु मैंने दिया, आतई तुम सब ने दिया, आतईना हमने दिया, आता तो सूरत ने दिया। यूती वो देता है, यूतू ना वो सब देते हैं, तूती आप देते हैं, ऊती मैं देता हूँ, तू ना आप सब देते हैं, नू नूती हम देते हैं, और तूती वो मोनस देती है। आती तू दे, आतू तुम सब दो, ला तूती तुम मत दे, ला तू तुम सब मत दो। मोतिन देने वाला, मोतन जिसको दिया जाए, इताउन देना। छह चाबियां भी पढ़ सकते हैं, आता यूती आती, मोती मोतिन मोतन ईताउन। ठीक है। वर्क बुक आप करेंगे तो उसमें आपको अगर कहा जाए कि अरबी बनाएं, वो सब देते हैं जक़ात, वो सब देते हैं, कि अरबी हमने क्या पढ़ी है ये देखें। युतूना वो सब देते हैं जक़ात, युतूना जकाता, युतूना जकाता इसकी अरबी होगी। उर्दू में तर्जमा करें, आताहुमुल्लाहु मिन फजलिही। आता कहाँ से आया है? आता से टेबल शुरू हो रहा है। आता उसने दिया, मादी पहला लफ्ज। आता उसने दिया, हम उन्हें, अल्लाह अल्लाह, यानी अल्लाह ने उन्हें दिया, मिन फजली ही उसके फजल से, यानी अपने फजल से। अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया। ठीक है। और हल आतई जकाता, क्या तुमने अदा अदा की है जक़ात? आप कहेंगे नाम आतई तो जकाता, जी हाँ मैंने जक़ात अदा की है। ये सब आपको तब आ जाएंगे जब आप टेबल की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और आता को बिल्कुल देखकर आप आजा की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसकी छह चाबियां आपकी बुक में मौजूद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 9 सफ़ात मुकम्मल कर लिए हैं, 69 आयात हो चुकी हैं, और हमारा आज नया टेबल ऐड हो गया है आता। पूरे 7 दिन है, तो इन 7 दिनों में एक छोटा सा टेबल याद करना इज नॉट अ बिग डील, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। दुआ में याद रखें, और प्रैक्टिसेस को प्लीज जारी रखें, जितनी मोहब्बत से आप लोग ने अभी जारी किए रखा हुआ है, तो फॉर द सेक ऑफ अल्लाह इस टाइम को भी वैल्यूएबल टाइम समझें, और डेडिकेटेडली इसी तरह से इसको मुकम्मल करें। अल्लाह ताला जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उस काम में मदद करते हैं। ए अल्लाह, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। दुआओं में सबको एक दूसरे को याद रखें, अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिस्टर।